Hello everyone, a warm welcome to all of you at our YouTube channel CA Sansar. I am Pooja Soni from CA Sansar and today we are going to discuss audit of gold loan. For this discussion, we have our wonderful speaker CA Vivek Khurana sir. A warm welcome to you sir and thank you us for joining us and giving us your valuable time. And now before starting the discussion, my request all of you to please like and subscribe our YouTube channel. Also press the bell icon so that you will get all the latest update of CA Sansar. And so back to the topic. Sir, can you please guide us which key points we have to check in gold loan under bank branch audit? Thank you very much, Pooja ji, for such a warm welcome. And my sincere thanks to Team CS Ansar for giving me once again opportunity on your platform to discuss on some another important topic. So today we will discuss about the audit or the verification of gold loans in bank branch statutory audit. So as the name is there, gold loan, but it's not like that. You will get some loan for purchasing of gold, like in case of vehicle loan में क्या होता है? We take some loan from the banks for buying our new vehicles, or the housing loan for new house or construction of house. But in gold loan it's not like that. It's like you can get the loan against gold. So I know our members know each and everything, but yes, let me first guide you from the point of view, bank point of view, then we'll also discuss from the auditor's point of view. So let me show you through the PPT. 1 minute. Yes. So PPT is visible. Verification and audit of gold loans, a bank branch auditor's perspective. So before that, one disclaimer is there. All these are my personal views and can't be constituted to be the views of the any other person or any other authority. And please don't take it any legal opinion, legal advice, the professional opinion, professional advice. And the purpose of this video is just to spread knowledge, information, awareness, and shall not be treated as solicitation in any other manner or any other purpose whatsoever. And my request to all of you, please also cross-check RBI notification, RBI circular, or the bank policy, bank circular, ICI guidance note, all that you can check. So regarding the type of gold loan, तो गोल्ड लोन जो है it can be either through the OD facility. Bank will give you the OD on the security of gold, या bullet repayment. This is the another some new concept that we will discuss. And then third one is term loan. तो टर्म लोन इज लाइक कि जैसे आप टर्म लोन लेते हैं एंड आफ्टर दैट यू मेक द पेमेंट प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट वो ईएमआई के थ्रू, तो इट्स कॉल्ड द टर्म लोन. एंड ओडी, ओडी में क्या होता है आपके, इफ द योर रिलेशन इज गुड विद द बैंक दे विल प्रोवाइड यू द ओडी लिमिट, एंड दिस इज द सिक्योर्ड ओडी लिमिट. एंड देन बुलेट रीपेमेंट, इसमें जो क्या है, यू हैव टू, आपको जैसे ओडी में यू हैव टू पे सम अमाउंट, आपको जब भी आपका यू कैन पे द प्रिंसिपल और द इंटरेस्ट. हाँ, रिमेंबर दिस थिंग, आयरेक नॉर्म्स आर एप्लीकेबल हियर, ओडी ओडी में भी, ईएमआई में भी. तो ओडी में क्या है, लाइक अदर ओवरड्राफ्टिंग, कि आप जब भी यू कैन यूज एंड देन कैन पे द अमाउंट. इट्स द फ्लेक्सिबिलिटी कि आप जब भी मर्जी आप ओडी भी ले सकते हो और उसके अमाउंट अकॉर्डिंगली आप पे कर सकते हो, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, और एज पर द बैंक पॉलिसी एंड द आयरेक नॉर्म्स. And then term loan में बैंक विल आस्क यू टू पे द ईएमआई, कि आप मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर दो. उसमें आइदर इट कैन बी मंथली बेसिस पे या फिर एज पर द आपके जो रिलेशनशिप है बैंक्स के उसके अकॉर्डिंगली. बट इन केस ऑफ बुलेट रिपेमेंट में क्या है, बैंक आस्क यू टू पे द अमाउंट, एंटायर अमाउंट, जो भी आपका लोन अमाउंट है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द गोल्ड लोन. इफ इट्स 3 months तो आप पे कर सकते हो आफ्टर 3 months, कि जो भी उसका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट है. या इफ इट्स 6 month तो आप 6 month के बाद, एंड मैक्सिमम इज 12 month एज पर द आरबीआई पॉलिसी. बुलेट रीपेमेंट इज नॉट मोर देन 12 months. तो 12 months का अगर आपने कोई गोल्ड लोन दिया है तो जितना भी आपको लोन प्रोवाइड करेगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दिस 12 months, यू हैव टू पे जो भी उसका प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट
जो भी उसके ऊपर है, एंड टोटल अमाउंट आपको पे करना है एज द गोल्ड लोन। एंड जो इंटरेस्ट, रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंटरेस्ट पोर्शन है इन केस ऑफ बुलेट रीपेमेंट, दिस इज, आपका इंटरेस्ट तो चार्ज हो रहा है एवरी मंथ बेसिस पे, बट ड्यू इज ओनली ऑन द मेच्योरिटी, एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, एंड बैंक विल क्रेडिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दिस लोन। एंड द सेकेंड थिंग दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी इसके ऊपर हम डिस्कस भी करेंगे, रिगार्डिंग द एलटीवी जो रेशियो है, बैंक शुड चेक, एंड दिस रेशियो शुड बी थ्रू आउट द ईयर, जो आपका थ्रू आउट द टेन्योर है उसका, अदरवाइज इट्स क्लासिफाइड एज एनपीए, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बट माय ओनली पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको बताऊं कि व्हाट्स द बुलेट रीपेमेंट इन केस ऑफ गोल्ड लोन, एंड देन व्हाट्स द एलटीवी रेशियो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो एलटीवी रेशियो है ना, दैट्स डिपेंड कि व्हाट्स द वैल्यू ऑफ योर गोल्ड, जो आपका गोल्ड है जिसके बेसिस पे आपको बैंक लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो उसमें व्हाट दे चेक कि आप उसकी क्या प्योरिटी है, कि जो आपका गोल्ड है उसकी क्या प्योरिटी है, उसका क्या वेट है, एंड देन व्हाट्स द प्राइस, जो प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है, दीज थ्री थिंग्स कौन कैलकुलेट करते हैं, जो बैंक्स के पैनल में वैल्यूअर्स हैं, जो उसको वो असेस करेंगे उसकी वैल्यू। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप बोलो कि आज तो गोल्ड इज 88,000 रुपीज, तो उसके अकॉर्डिंग माई वैल्यू इज 8 लाख या 10 तक, नो, बैंक विल असेस, तो कैसे असेस करना है, उसके अकॉर्डिंगली दे विल गिव यू द लोन। एंड जो आरबीआई की पॉलिसी है उसमें एक होता है एलटीवी, लोन टू वैल्यू रेशियो, जो आपके गोल्ड की वैल्यू दे विल असेस, एंड आफ्टर दैट उसके अकॉर्डिंगली दे विल प्रोवाइड यू द लोन। जो आरबीआई की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली मैक्सिमम 75% इज द एलटीवी, मींस 25% मार्जिन बैंक हैव टू मेंटेन, बट इट कैन बी डिफरेंट बैंक टू बैंक। ये नहीं है कि 80% कर देगा, नो, बैंक कैन डू 70%, 65%, बट मैक्सिमम इज 75% एज पर द आरबीआई पॉलिसी, एंड दिस शुड बी थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ द गोल्ड लोन। अगर इससे ऊपर चली जाती है देन अकाउंट विल बी एनपी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ सम कस्टमर इज देयर, उसकी वैल्यू है गोल्ड की जो असेस की है वैल्यूअर ने 1 लाख रुपीज, तो इट डजंट मीन कि आपको 75,000 लोन प्रोवाइड कर देना, नो, यू हैव टू चेक जो कितने टाइम के लिए वो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, बैंक प्रोवाइड कर रहा है 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर। इफ प्रोवाइडिंग फॉर 1 ईयर, देन व्हाट्स द एक्रूड इंटरेस्ट, जो 1 ईयर में कितना इंटरेस्ट होगा, फॉर एग्जांपल वन, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल 9,000, तो दैट आल्सो यू हैव टू सी, वो भी आपको रिकवर करना है। तो जो आपका प्रिंसिपल आर प्लस इंटरेस्ट है उसकी रिवर्स कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली आपको चेक करना है कि बैंक हाउ मच दे कैन प्रोवाइड आफ्टर कंसिडरिंग द जो एलटीवी रेट जो है आपकी लोन टू वैल्यू की, मार्जिन भी आपने देखना है, तो इसके ऊपर हम डिस्कस भी करेंगे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस एलटीवी शुड बी थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ द गोल्ड लोन। देन नेक्स्ट, जो आपको इंटरेस्ट है उसके बाद अभी मैंने आपको बता दिया, जो आपका टर्म लोन है, टर्म लोन में आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जो भी एज पर द एग्रीमेंट ऑफ द बैंक है। बुलेट रीपेमेंट में, बुलेट रीपेमेंट में क्या करना है आपको, एट द एंड ऑफ द टेन्योर, उसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आप तो एट द एंड, अगर 3 मंथ है तो आप 3 मंथ के बाद पे करोगे, 6 मंथ के लिए 6 मंथ के बाद, 1 ईयर है 12 मंथ के लिए 12 मंथ के बाद। एंड रिमेंबर दिस थिंग दैट यू हैव टू चेक, bank should credit that interest only after the end of the tenure. It's not due at that time only, कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप एवरी मंथ उसको ड्यू दिखा रहे हो फिर उसका अकाउंट एंट्री कर, नो, बुलेट रीपेमेंट में ओनली आफ्टर द एंड ऑफ द टेन्योर। एंड ओडी फैसिलिटी जैसे हम उसको एज यू यूज एंड यू कैन पे उसके अकॉर्डिंगली, जैसे हम नॉर्मली ओडी में देखते हैं, इसमें नथिंग न्यू इज देयर इन केस ऑफ गोल्ड लोन, बट इट्स थिंग दिस इज द सिक्योर्ड ओडी। एंड देन वैल्यूएशन प्रोसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यूएशन प्रोसेस। अभी पीछे आरबीआई का सर्कुलर भी आया था, आरबीआई आल्सो रेज सम इश्यूज, वो भी हम डिस्कस करेंगे, 30 सितंबर 2024 का सर्कुलर है। तो जो वैल्यूएशन प्रोसेस में नंबर वन इज उसकी जो प्योरिटी, बिकॉज गोल्ड में लोड्स ऑफ फ्रॉड्स आते हैं, यू कांट असेस कि वो गोल्ड कितना प्योर है, पीतल है या येलो थिंग्स है या पॉलिश्ड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्योरिटी। तो प्योरिटी के लिए नाउ डेज लोट्स ऑफ न्यू टेक्निक्स बैंक्स आर यूजिंग, लाइक एडवांस एक्सरे, जो एक्सआरएफ टेक्निक्स है, उसके अलावा फिर कुछ और करार चेक्स फॉर द
वैल्यूएशन है, तो वो जो वैल्यूअर्स हैं दे हैव ऑल द लेटेस्ट टेक्निक्स, दे कैन चेक कि वो प्योर गोल्ड है, 22 कैरेट है, 24 कैरेट है, 20 कैरेट है, तो एवरीथिंग दे आर अवेयर। तो दैट्स व्हाई वैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन वेट मेजर्स, तो वेट में भी दे चेक। आप ये नहीं कह सकते तो मेरा वेट हाफ के जी है या 10 ग्राम है, 20 ग्राम है। दे चेक देयर सेल्फ कि उसमें कोई स्टोन्स हैं या कुछ अदर मैटर्स हैं, वो एक्सक्लूड करते हैं। एंड ऑल्सो आप ये भी नहीं कह सकते मेरे मेकिंग चार्जेस इतने थे, नो, मेकिंग चार्जेस अभी हम डिस्कस भी करेंगे, दैट्स एक्सक्लूडेड। देन मार्केट रेट, कौन सा रेट कंसीडर करना है? तो मार्केट रेट आपका जो कंसीडर करना है, यहाँ पे मेंशन भी है, जो प्रिवेलिंग मार्केट रेट है फॉर 22 कैरेट गोल्ड, वो लास्ट 30 डेज का एवरेज क्लोजिंग प्राइस है। वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। देन ऑडिट करना है, एज ए ऑडिटर तो हमने क्या क्या चेक करना है? एक तो आपकी लोन फाइल चेक करनी है कि सैंक्शन के टाइम पे केवाईसी थे, डॉक्यूमेंट्स थे, गोल्ड एक्सेट्रा, फिजिकल वेरिफिकेशन, वेट वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले जो हम ऑलवेज डिस्कस करते हैं कि एट द टाइम ऑफ बैंक ब्रांच ऑडिट यू हैव टू सी, वन इज न्यू एडवांसेस, जो इन द ईयर व्हेन यू आर डूइंग द ऑडिट, उस साल जो भी एडवांसेस सैंक्शन डिसबर्स हुए उसको चेक करना है आपने। एंड सेकंड इज ओल्ड एडवांसेस। तो वैसे तो बुलेट रिपेमेंट में 12 मंथ्स के, अगर कोई लॉन्ग पीरियड के हैं तो दैट यू हैव टू सी द ओल्ड एडवांसेस। तो उसमें क्या क्या चेक करोगे? क्रेडिट अप्रेजल एंड सैंक्शन, डिसबर्समेंट, डॉक्यूमेंटेशन, स्टोरेज, देन रिव्यू मॉनिटरिंग। सेम थिंग फॉर द ओल्ड एडवांसेस, asset classification, then sanction letter, provisioning norms, and the income recognition as per direct norms, review monitoring system। तो हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एट द टाइम ऑफ सैंक्शनिंग। जब हम सैंक्शन या डिसबर्स कर रहे हैं तो इन केस ऑफ गोल्ड लोन यू हैव टू चेक जो आप उसकी फाइल्स है उसमें केवाईसी प्रॉपर है या नहीं है उसके। एंड सेकंड देयर लोन एप्लीकेशन है, जो आपका लोन एप्लीकेशन है एज पर लेटेस्ट आरबीआई सर्कुलर। ये नहीं है जैसे कई कहते हैं आप यहाँ साइन कर दो, नो, इट शुड बी कंप्लीट। उसमें मेंशन होगा कि कब कब आपने पेमेंट करनी है, बुलेट रीपेमेंट है एट द एंड ऑफ पेमेंट करनी है, आपको इतनी पेमेंट करनी है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आपका टर्म लोन है तो कब आपकी ईएमआई ड्यू है, नहीं ड्यू होगी तो आपका एनपीए कब होगा, एवरीथिंग, एंड सिग्नेचर ऑफ द बोरोवर। एंड देन एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यूएशन के टाइम जो गोल्ड वैल्यू कर रहे हो, फिजिकल प्रेजेंस ऑफ बोरोवर इज मस्ट। कि वन वैल्यूअर, अनदर वन इज द बोरोवर, एंड थर्ड वन इज द बैंक मैनेजर या बैंक ऑफिसर। इट्स नॉट लाइक दैट कि कोई लोन देने आ रहा है और आप क्या आप रख के चले जाओ, आप किसी पीएम को भेज दो, जाओ जी वैल्यूअर से वैल्यू करा दो, नो, दैट्स वेरी रिस्की। borrower should be there in presence of the borrower, the this one loan valuation should be done। एंड देन ये भी चेक करना है, अभी ये आरबीआई की जो सर्कुलर है उसमें भी है, कहीं ऐसा तो नहीं है एक ही पैन नंबर के बेसिस पे आपने मल्टीपल गोल्ड लोन प्रोवाइड कर रखे हैं। एंड थर्ड थिंग, इन केस अगर कोई ornaments है like jewelry etc, it belongs to the family member, then proper documentation is there or not। and also in case of female jewelry should take the consent letter। कहीं बाद में फिर इशू हो, लेडीज कहेंगी नहीं जी मेरे तो बिना उसके कंसेंट के ले गए, वो फिर इश्यूज आ जाते हैं काफी सारे। तो दैट आल्सो यू हैव टू चेक। एंड देन आल्सो यू हैव टू सी कि जो थर्ड पार्टी कि किसी और के नाम से है, अगर आपके नाम से नहीं है, उसके बिहाफ पे प्लेज अलाउड है लोन वगैरह या नहीं है। देन एलटीवी, जो भी पीछे मैंने डिस्कस किया था कि एलटीवी मैक्सिमम 75%, और दैट शुड बी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो पूरे पीरियड का इंटरेस्ट है उसको टोटल करके, दैट हैव टू सी दैट एलटीवी शुड बी मेंटेन, एलटीवी जो लोन टू वैल्यू है, अदरवाइज अकाउंट टू बी एनपीए। देन एंड यूज, वो भी चेक करना है एंड यूज, कि कहीं पता चले कि भाई मैं लोन के बेस पे मैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ले रहा हूँ, वो एग्रीकल्चर आपका प्रायोरिटी सेक्टर में उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तो वेदर इट्स यूज फॉर दैट पर्पस और नॉट, दैट यू हैव टू चेक कि उस पर्पस के लिए चेक कर रहे हैं या नहीं चेक कर रहे, कि एंड यूज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन में क्या देखना है आपने? केवाईसी आपने चेक कर लिए सारे सारे, ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स कि वो लोन उस बंदे से बिलोंग करता है या किसी और का है। देन एप्लीकेशन फॉर्म वो पूरा कंप्लीट है आरबीआई के सर्कुलर के अकॉर्डिंग। देन एंड यूज, किस पर्पस के लिए ले रहा है। सैंक्शन लेटर, सैंक्शन लेटर इज द बाइबल, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, एट द टाइम ऑफ बैंक ब्रांच ऑडिट सैंक्शन लेटर यू शुड चेक
कि उसके अंदर क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको मैक्सिमम थिंग्स यू विल कवर, मैक्सिमम थिंग, सिर्फ सैंक्शन लेटर उठा लो उसका, फिर प्रोविजरी नोट, एग्रीमेंट, प्लेज, कंसेंट लेटर फ्रॉम लेडीज, देन एलटीवी एज पर द आरबीआई नॉर्म्स, गोल्ड वैल्यूएशन रिपोर्ट, स्टैम्प ड्यूटी, एंड देन सरसाई रजिस्ट्रेशन. सरसाई इज नॉट ओनली फॉर द इमूवेबल, आरबीआई सेड आप हर लोन का सरसाई में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, सो दैट डुप्लीकेशन आर नॉट देयर. तो दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन. देन स्टोरेज, उसकी वैल्यूएशन एंड द स्टोरेज. तो वैल्यूएशन में तो मैंने आपको बता दिया, तो वैल्यूएशन शुड बी डन बाय द अप्रूव्ड, जो भी अप्रूव्ड वैल्यूअर है, जो बैंक के एम्पेलमेंट में है, जो ऑथराइज वैल्यूअर है, उसके थ्रू होनी चाहिए. एंड इट शुड बी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल 3% वैल्यूअर, बैंक मैनेजर, बैंक ऑफिसर एंड द बोरोवर. एंड देन जो उसका वेट चेक करना है या उसकी प्योरिटी, मेन थिंग इज प्योरिटी, वेट एंड द वैल्यूएशन. तो दीज थिंग्स आर देयर, वो जो अभी जो पीछे हमने डिस्कस किया कि कैसे कैसे आपने करना है, किस प्राइस पे करना है. एंड देन यू हैव टू चेक द स्टोरेज, बैंक की पॉलिसी क्या स्टोरेज के लिए, तो बैंक कहाँ उसको सेव करके रख रहा है, वेदर कोई बैग्स वगैरह सील कर रहा है, उसका सीलिंग का क्या मेथड है, या फिर कोई उसने ऑर्नामेंट का रजिस्टर बनाया हुआ है, या फिर उसके लिए यूनिक आईडीज फॉर बैग्स की, दिस आईडी फॉर दिस बोरोवर, दिस आईडी फॉर दिस बोरोवर. एंड देन बॉन्ड वगैरह जो है उसका वैल्यूएशन, बॉन्ड कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गए. एंड आल्सो यू हैव टू चेक जो इंश्योरेंस है, कोई इंश्योरेंस कवर फॉर थेफ्ट, या फिर उस केसेस में कोई फायर प्रूफ है या नहीं है, तो दैट थिंग यू हैव टू चेक एज फॉर द वैल्यूएशन एंड स्टोरेज. देन लोन डिसबर्समेंट एंड रीपेमेंट में, इसके ऊपर भी आरबीआई ने इशू किया कि जो आरबीआई सेड की जो लोन की जो आपको डिसबर्स कर रहे हैं, that you have to check it's up to the income tax limit, जो उसमें कैश की लिमिट है 20,000. बट कई केसेस में क्या हो रहा है, दे आर प्रोवाइडिंग कैश 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख इन कैश, rather than transferring into their saving account, but they are giving the cash. तो आरबीआई सेट, अभी उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, तो दिस आर द मेजर कंसर्न. तो कैश डिसबर्समेंट जो है विद इन द लीगल लिमिट्स है या नहीं है. एंड देन जो जो अगर आप ट्रांसफर भी कर रहे हो लोन का, तो जो डिसबर्समेंट है इट्स इनटू द बोरोवर अकाउंट या किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट में जा रहे हैं, दैट आल्सो यू हैव टू चेक. एंड देन जो मैंने अभी आपको बताया कि एंड यूज, कि अगर इट्स फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस, उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए तो नहीं यूज कर रहा. अगर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लिया है गोल्ड लोन, लोन अगेंस्ट गोल्ड, तो उसको किसी नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए तो नहीं ले रहा. या फिर मल्टी, एक पैन के ऊपर मल्टीपल गोल्ड लोन तो नहीं है. दीज फ्यू थिंग्स यू हैव टू चेक. एंड देन अनदर थिंग इज कि अगर आपने सीबीएस वगैरह में, उसके अंदर भी आप चेक कर सकते हो, इफ द गोल्ड लोन इज रिटर्न इमीडिएटली अपॉन फुल पेमेंट्स, जो अगर फुल पेमेंट्स पर कर रही है, देन उसमें चेक करना है कि आप क्लोजर एंट्री हो गई है सीबीएस में, या उसके साथ साथ एक्नॉलेजमेंट जो बोरोवर है उसको दी है या नहीं दी है. एंड इन केस ऑफ कोई हाई वैल्यू गोल्ड लोन है, पहले क्या थी, आरबीआई की लिमिट वाज देयर कि यू कैन प्रोवाइड अप टू 1 लाख रुपीज गोल्ड लोन, बट दैट हैज बीन रिमूव्ड. आरबीआई ने वो रिमूव कर दी. नाउ इट्स एज पर द बैंक पॉलिसी, बैंक कितना प्रोवाइड करते हैं, 5 लाख, 10 लाख और मोर. तो इन केस देयर आर हाई वैल्यू गोल्ड लोन्स आर देयर, देन यू कैन आल्सो आस्क फॉर द फोरेंसिक वेरिफिकेशन. उसके लिए चेक कर सकते हो आप, फिजिकल वेरिफिकेशन भी चेक कर सकते हो. अभी हम डिस्कस करते हैं. देन जो एक रिस्क मैनेजमेंट एंट्रेंस है, तो अगर कोई डिफॉल्ट हो जाता है गोल्ड लोन के केसेस में, दैट यू हैव टू चेक कि जो डिफॉल्ट था, तो उस केस में प्रॉपर इंटीमेशन दी है उसको, बोरोवर को, आपको उसको रिमाइंडर्स भेजे हैं कि आपका ये गोल्ड लोन ये ड्यूज है, आप नहीं पेमेंट करोगे तो वी विल डू द ऑक्शन प्रोसेस. एंड देन जो ऑक्शन भी, इसके ऊपर भी आरबीआई के जो सर्कुलर है उसमें इश्यूज है कि आपने जो ट्रांसपेरेंसी है एट द टाइम ऑफ ऑक्शन, इट्स नॉट देयर. एंड देन जो ऑक्शन का प्राइस है, दैट शुड आल्सो एज ट्रांसपेरेंट. एंड इफ if it's there, then person should be at the time of auction, borrower है. then एनपीए के केस में आरबीआई यहाँ पे भी कंसर्न है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि गोल्ड लोन को आप एनपीए नहीं कर रहे. सी, ऐसा नहीं है कि इट्स द सिक्योर्ड लोन, वो वाला इसके ऊपर जो आयरेक नॉर्म्स में है आपका, इन केस ऑफ एनएससी, इंदिरा विकास पत्र, इफ देयर आर प्रॉपर मार्जिन आर देयर, देन इट्स नॉट एनपीए, इट्स नॉट एप्लीकेबल ऑन द गोल्ड. तो गोल्ड के केसेस में अगर आपका इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अगर टर्म लोन है, इफ ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 days, देन
इट्स एनपीए। सेम थिंग वो अगर ओडी के केस में, अगर उसमें आपका जो उसमें जो 90 डेज वाला कंसेप्ट है आउट ऑफ ऑर्डर, तो इन दैट केस दैट विल बी द एनपीए। या फिर जो आपका जो क्वेश्चन है बुलेट रीपेमेंट वाला, बुलेट रीपेमेंट में अगर आपका जो पेमेंट्स है, आपका जो एलटीवी रेशियो है, इफ इट एक्सीड्स, then also account will be the NPA. And another thing they said, अभी उसके ऊपर हम इशू भी करेंगे, इन मैनी केसेस आप चेक करोगे कि जो अगर आपका जो टेन्योर कंप्लीट हो रहा है इन द सेम डे, व्हाट बैंक्स डू, जैसे किसी बोरोवर का लोन रीपेमेंट डेट है, इस डेट को उन्होंने रीपे करना है, मतलब एक्सपायरी है, सेम डे बैंक व्हाट विल डू, बैंक उसको एक न्यू लोन प्रोवाइड करेगा उसके सेविंग अकाउंट में, एंड थ्रू दैट सेविंग अकाउंट बैंक विल डिस्क्लोज। तो दिस इज ओनली एवरग्रीनिंग, मींस कस्टमर ने कुछ पेमेंट नहीं करी, बैंक इटसेल्फ डूइंग, तो दैट्स अकाउंट शुड बी एनपीए। दैट्स द एवरग्रीनिंग, मींस आप एक फ्रेश लोन प्रोवाइड कर रहे हो उसी लोन के अगेंस्ट, एंड द सेम डे यू आर डूइंग द सेम प्रोसेस, दैट यू हैव टू चेक, एंड देन सरसाइज रजिस्ट्रेशन अगर एप्लीकेबल है, अदरवाइज यू हैव टू आस्क देम कि इट्स मैंडेटरी फॉर द एवरी लोन। देन जो ये आरबीआई का सर्कुलर है 30 सितंबर 2024 को, दे सेड lots of irregularities are there because gold loan, gold is the liquid assets, तो lots of even जो फिनटेक कंपनीज हैं, अदर प्राइवेट पर्सन है, दे आर आल्सो इशूइंग, जैसे मुथूट फाइनेंस है और बड़े सारे हैं, दे आर गिविंग द गोल्ड लोन्स। तो आरबीआई सेड कि lots of discrepancies are there, irregularities are there। फॉर एग्जांपल दे सेड कि जो थर्ड पार्टी का यूजेज है at the time of sanctioning या appraisal of loan या at the time of storage of loan, that's major issue। then second thing they said, जो valuation है gold का without the presence of customer, I told you earlier 3% should be there, one bank officer, bank manager, second one is the valuer, third one is the borrower, they must be there। तो इन मैनी केसेस आई टोल्ड यू, क्या कहते हैं, वो कस्टमर आता है, सर मेरा गोल्ड है लोन चाहिए, ठीक है, वो मैनेजर विल सेंड थ्रू द पीएन टू द वैल्यूअर कि इसकी वैल्यूएशन बना दो, दैट्स द रॉन्ग प्रैक्टिस। एंड थर्ड, इनएडुकेट ड्यू डिलिजेंस भी नहीं कर रहे, एंड द लैक ऑफ एंड यूज ऑफ द मॉनिटरिंग, इसके ऊपर डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। देन द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ड्यूरिंग ऑक्शन ऑफ, जो भी ऑक्शन ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी ऑन डिफॉल्ट ऑफ द कस्टमर्स, जो भी मैंने आपको बताया कि उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है एट द टाइम ऑफ ऑक्शन। देन वीकनेस इन मॉनिटरिंग ऑफ एलटीवी, एलटीवी इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रू आउट द टेन्योर बैंक हैव टू मेंटेन द एलटीवी। ये नहीं कि आप 1 लाख का 75% पे कर दो लोन उनको और नेक्स्ट मंथ ही आपकी एलटीवी से ऊपर हो जाएगा, इंटरेस्ट जैसे ही आपका एक्रू होगा इट्स अबव द 75%, डेफिनेटली अकाउंट विल बी एनपीए। तो बैंक हैव टू टेक केयर, उसका मार्जिन में से इंटरेस्ट लेस करके देन प्रोवाइड द लोन अकॉर्डिंगली। देन इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ रिस्क वेट। सो जो इसका डिटेल में जो मैंने बताया, आपका थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, जो आपकी फिनटेक कंपनी जो आजकल वैल्यूएशन, क्रेडिट अप्रेजल, स्टोरेज, केवाईसी कंप्लायंस, कॉम्प्रोमाइजिंग सिक्योरिटी वगैरह, ट्रांसपेरेंसी को अगर बैंक ने कुछ आउटसोर्सिंग कर रखी है किसी के साथ कि आप इसका केवाईसी कर दो या आपका क्रेडिट अप्रेजर है या वैल्यू, दैट यू हैव टू चेक। आरबीआई सेड loads of irregularities are there at the time of third party involvement। And the second thing, valuation without the customer presence, that's also another irregularity, as RBI said in their circular 30 September 2024। And then inadequate due diligence and the end use of the monitoring। I told you कि एंड यूज, कि अगर आपने लोन प्रोवाइड किया है, अगर आपने नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दिया तो उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रहा है, एग्रीकल्चर के लिए नॉन एग्रीकल्चर, दैट आल्सो यू हैव टू चेक। देन लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन गोल्ड ऑक्शन, वो भी मैंने आपको बताया कि ट्रांसपेरेंसी इज नॉट देयर एट द टाइम ऑफ ऑक्शन, कि उसके जो लॉट्स ऑफ गैप्स आर देयर, प्राइस में है, प्रोसीजरल गैप्स है कि आपने उसको जो रिमाइंडर्स हैं वो इशू नहीं करे। देन वीक मॉनिटरिंग ऑफ एलटीवी, एलटीवी फिर मैं कह रहा हूँ एलटीवी यू हैव टू चेक, तो उसमें भी इरेगुलरिटी है आरबीआई से। देन इनकरेक्ट रिस्क वेट एप्लीकेशन, तो इसमें भी इनरेगुलरिटी है। देन आरबीआई आस्क द बैंक कि यू हैव द दिस टाइम, आप जो आपका पोर्टफोलियो है गोल्ड लोन्स का उसको
प्रॉपरली क्लोजली मॉनिटर करो। देन जो आउटसोर्स एक्टिविटीज हैं या थर्ड पार्टी है उसके ऊपर भी कंट्रोल करो। एंड दे गिव द थर्ड 3 मंथ्स टाइम। उसके साथ साथ दे सेट कि कुछ और ऑपरेशनल डेफिशिएंसी है। फॉर एग्जांपल लोन स्ट्रक्चरिंग इश्यूज है कि रोल ओवर, कि आपने पार्टी से पेमेंट तो आई नहीं फुल, तो कुछ पार्शियल पेमेंट की बेसिस पे आपने रोल ओवर कर दिया। या फिर नॉन कैटेगराइजेशन, एनपीए नहीं करते कि गोल्ड तो सिक्योर्ड है, गोल्ड तो 88,000 या 90,000 हो गया, कैसे वो एनपी हो जाएगा? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। एंड द एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन थ्रू फ्रेश डिसबर्सल, आई टोल्ड यू कि न्यू लोन प्रोवाइड कर दिया। एंड वन मोर थिंग, इन मैनी केसेस, अब इफ द कस्टमर आस्क कि सर मैंने आपको इस लोन के बदले 5 कुछ ऑर्नामेंट्स है, ज्वेलरी है, मेरे को 2-3 मेरे को वापस लेने हैं, उसके बेसिस पे मेरे को आप पेमेंट, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं कर सकता बैंक। बैंक फुल पेमेंट के बेसिस जो भी उसके ओवरड्यूज है उसके बाद ही वो ज्वेलरी को रिलीज कर सकते हैं। देन कुछ सीबीएसई की जो लिमिटेशन है, देन दे सेट कि टॉप ऑफ गोल्ड लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, बट सीबीएसई के थ्रू नहीं हो रहा। देन जो एडिशनल लोन्स हैं, तो सीबीएस जो ऑटोमेटेशन का था एक आरबीआई का सर्कुलर, वो नहीं फॉलो करते। देन सस्पिशियस लोन रीपेमेंट पैटर्न, जो लोन की रीपेमेंट आ रही है, दैट आल्सो यू हैव टू चेक कि कहीं जो फ्रेश अप्रूवल लोन के थ्रू आ रहा है या किस अकाउंट के थ्रू आ रही है, तो उसको भी यू हैव टू चेक। उसमें भी बड़े सारे इश्यूज हैं। एंड देन कैश डिसबर्समेंट वायलेशन, जो मैंने आपको बताया था कि in cash they are providing 50,000 1 lakh rupees, but that's the violation of the income tax act। उसकी जो लिमिटेशन फिक्स करी है, प्रिस्क्राइब लिमिट है आपकी लोन्स की 269 269 टी, उसके अकॉर्डिंग उसका वायलेशन तो नहीं हो रहा उसमें इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली। एंड देन गवर्नेंस एंड ओवरनाइट इशू, तो उसमें वही उन्होंने बताया है कि एक ही सिंगल पैन नंबर जो सिंगल बोरोवर है उसके बेसिस पे मल्टीपल गोल्ड लोन इश्यू कर रहे हैं, या वीक कंट्रोल लोन्स वगैरह, उसमें जो थर्ड पार्टी एंटिटी है। दैट्स द थिंग। सो दिस इज रिगार्डिंग द, जो आपका अभी आपने पूछा था कि व्हाट वी हैव टू चेक एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन और ऑडिट ऑफ द गोल्ड लोन इन केस ऑफ बैंक ब्रांच ऑडिट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम वी स्किप, वही सोचते हैं गोल्ड लोन में क्या एनपी होगा, इतना तो सिक्योर है, 88,000 गया हुआ है रेट उसका, बट मैनी थिंग्स यू हैव टू चेक कि उसका भी एनपी हो सकता है। यू हैव टू चेक बैंक पॉलिसी, बैंक की क्या पॉलिसी है, एलटीवी रेशियो क्या है उसका, देन सैंक्शन लेटर में क्या कंडीशंस हैं, रोल ओवर कैसे हो रहे हैं न्यू उसमें जो लोन्स हैं, क्लोजर्स के टाइम पे क्या है, एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन क्या है, दैट फ्यू थिंग्स यू हैव टू चेक। यस पूजा जी, इसके अलावा कोई और आपका इशू है तो आप बताएं। No, sir, and it was a very grateful session, and you have explained very well, sir. Thank you so much. Thank you very much once again to Thank Team you. CS Ansar for giving me once again opportunity on your platform. And in case you have any issue, you can just message me। आप यहाँ पे सी एस संसार यूट्यूब चैनल पे मैसेज कर सकते हो, या यू कैन सेंड द व्हाट्सएप और यू कैन डिस्कस ऑन मी। बट ओनली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज कॉल और व्हाट्सएप ड्यूरिंग द ऑफिस टाइम, या मैक्सिमम 7 8 9। अभी 2 दिन पहले रात को 12 बजे आ रहा था किसी को ओडी डी लिमिट पता करनी है, और उसकी और जो आपकी सीसी लिमिट या ओडी के ऊपर डिस्कस करना है, बट रात को 12 बजे कौन सा आप बैंक ऑडिट कर रहे हो? तो माई ओनली कंसर्न ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, बाद में नहीं। सो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।